کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ دم کے لازم ہوتے ہی فوراً اس کی ادائی کرنا واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تاخیر کی بھی اجازت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حج و عمرے کے مکمل ہونے کے بعد دم ادا کرے یا اپنے وطن واپس آ کر کسی کے ذریعے حرم میں دم کی ادائیگی کروا دے تو ایسی صورت میں بھی اس کا وہ دم ادا ہو جائے گا اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اور اس تاخیر سے اس کے دیگر ارکان پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے دم کی ادائیگی کر کے اسے اپنے ذمے سے ساقط کر دے۔ نیز یہاں اس بات کا خیال بھی ضروری ہے کہ دم کی ادائیگی چونکہ حرم میں ہی ہونا ضروری ہے، حرم کے علاوہ کسی اور جگہ میں دم ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا جس پر دم لازم ہو اسے چاہیے وطن واپس ہونے سے پہلے دم ادا کر دے، کیونکہ وطن واپسی کے بعد ممکن ہے کہ کسی کے ذریعے حرم میں دم کی ادائیگی کی صورت ہی نہ بن پائے۔ دم جو ہے وہ حج یا عمرے میں ترک واجب پر کہ جن کا تعلق حج یا عمرے سے ہے ان کے ترک پر یہ دم لازم آتا ہے۔ اور دم کیا ہے کہ خون بہانا ہے، تو دم میں جو ہے وہ حرم میں بکرا بکری یا بھیڑ یا دمبا جو ہے وہ اس کی قربانی کی جاتی ہے، اور اس میں شرائط وہی ہیں جو قربانی کی شرائط ہیں۔ عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، نہ کرے واجب ادا جو وہ بڑا محروم ہے، بڑا محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں جو نا ہمیں دعوت اسلامی میسر آئی۔ ماشاءاللہ بہترین مدنی مذاکرہ رہا اور سوالات کے جوابات امیر اہل سنت نے عرض کیے اور ہم نے سنے۔ دوست ہیں ہمارے، تقریباً مہینے 2 مہینے سے آنے لگا ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں یہاں آ کر، بہت سکون ملتا ہے دل کو۔ ہمارے 5 ٹائم کی نمازیں ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ۔ آج الحمدللہ نمازیں سیکھی، مدنی حلقے میں اپنے نگران سے سنت سکھائی، ہمیں نہیں پتا تھا، غسل سکھائے، سنت فرض کتنے ہوتے ہیں۔ آج میں نے قربانی کے حوالے سے معلومات سیکھی، اور امیر اہل سنت نے جو ہمیں جو ترجیح دی ایک تو کھالوں کے حوالے سے دی۔ امیر اہل سنت فرما رہے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا پہلے سے زیادہ بدل چکا ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ پہلے نمازوں پر پابندی اس کی نہیں تھی تو وہ نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 80% جو ہے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بندے کی زبان سے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ بڑا سرور ملتا ہے، بڑا روحانی سکون ملتا ہے، اور ہماری کوشش ہے دین سے جڑے رہیں، اور ہمیں بہت اچھی نصیحت بھی ملی ہے اور ابھی توبہ کرنے کی ہمیں جو ہے مہلت ملی ہے۔ کار صاحب جو ہمیں باہر سے لے کر آتے تھے کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ فیضان مدینہ، کار صاحب کے ساتھ یہاں آتے تھے۔ ماشاءاللہ یہاں آنے کے بعد 5 وقت کی نماز شروع کی ہم لوگوں نے۔ دعوت اسلامی سے جڑنے سے پہلے جو ہے وہ میری زندگی میں اتنا اچھا انقلاب نہیں تھا، مطلب یہ دعوت اسلامی جو ہے وہ میری زندگی میں بہت بڑا انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اس سے جڑنے کے بعد مجھے جو ہے وہ علم دین سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ اور جو ہے قربانی کی کھالوں کی آواز سے آپ نے فرمایا کہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں اور اسی میں کھالے جمع کریں آپ۔ اور مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے سے مجھے بہت کچھ علم دین سیکھنے کا موقع ملا، اور جو ہے وہ میں ابھی پھر نیت کی ہے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی۔ 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کے لیے خالی جمع کروں گا انشاءاللہ، مدنی قافلے کا مسافر بھی ہوں گا انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ کھالیں وغیرہ کس کو دینے ہیں جو نہیں ہے، تو میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کو کھالیں دینی چاہیے، بہترین کام کے لیے ثواب کمائے۔ آج نائجیریا کے سٹی کانو کے اندر الحمدللہ مدنی مذاکرہ اجتماع ہوا۔ ہمارے یہ اسلامی بھائی ڈیفرنٹ ایریاز سے کم و بیش 12 لوکل گورنمنٹ سے تشریف لائے، 150 کم و بیش ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اور مدنی مذاکرہ انہوں نے سنا، ساتھ میں ٹرانسلیٹ کیا ہمارے یاسر بھائی نے۔ ان سے کچھ سنتے ہیں کہ یاسر بھائی کیا بتائیں گے آپ مدنی مذاکرے کے تعلق سے؟ قربان کیسے کرنا ہے اسی پروگرام نے ہمیں سکھایا ہے، اور ان کا دن بھی کیا کرنا ہے اسی پروگرام نے ہمیں بہت سکھایا ہے۔ ماشاءاللہ یہ حلاج بھائی شراڈا سے you talk something for about program. Muna godiya ga Allah ga wannan da'awat Islam da ta zo wannan ƙasa ta Najeriya, garinmu na Kano, kuma ƙoƙarin da take gurin yaɗa addinin musulunci, gurin da'awa na bayan salloli da lokuta daban-daban
da kuma madini dars da ake gabatarwa da kuma zikirai da ake gabatarwa na wannan ɗariƙa ta mu mai albarka, ɗariƙar qadiriyya al-mubajjala. ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह मदनी दर्स जो होता है दावत इस्लामी के तहत खानों में बहुत अच्छी बात है, दावत इस्लामी वाले देते हैं, इलाका दौरा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अमीर अल-सुन्नत का शुक्रिया, दावत इस्लामी का शुक्रिया माशाल्लाह जो ये दीन का काम पूरी दुनिया में आम कर रही है। उनका नाम है वाला सादी munjibir से abin da na fahimta dangane da wannan program shine wayar da kan mutane da ƙara musu haske akan yadda za su yi layya da irin yadda idan an yi layyan za a yi sadaka da kuma yadda addini yake da bukata a cusa farin ciki a zukatan yan uwa musulmi ta hanyar ba su wannan nama na layya da kuma cika musu domin su yi layya ko kuma inda dama ma ka ba wa mutum ragon layyan ko ka ba shi kuɗin da zai je ya layya. कुर्बानी किस तरह करनी है और ईद वाले दिन क्या क्या काम करने हैं, इन्होंने कहा कि हमें यहाँ ये सिखाया है। Alhamdulillah wannan program mun fahimci da cewa wayar da kai kuma musulmi ne. Alhamdulillah mun fahimci cewa wannan program din ya taimaka mana wajen fahimtar yadda za mu yi mu'amala a lokacin Eid al-Adha, kuma idan mun yi layyan yadda za mu rarraba ta da 'yan uwa ba iya mu kaɗai mu cinye ta ba domin falalar da za mu samu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدنی مذاکرے سے یہ سیکھا ہے کہ جب عید الکبیر یعنی بقرہ عید کا دن آئے تو اس وقت اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ دیگر غرباء کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر جائیں گے، خارج مسجد ہوں گے، تو اب آپ کا یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. دوبارہ جب داخل مسجد ہوں تو نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی. دل میں نیت حاضر ہو اور زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں، چاہے تو اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اگر نیت نہیں کی تو اب کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے مسجد میں. تو افطار کا وقت آ گیا، نہیں کی تھی تو اب نیت کر لیں اعتکاف کی اور اب افطار بھی کر لیں. تاہم مناسب طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے تاکہ ثواب بھی ملے. تو اعتکاف کی نیت کریں، کچھ ذکر و درود کریں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک اعتکاف کی وہ افطار وغیرہ کر لیں. اور پہلے سے نیت کی تھی تو کوئی اسپیشلی درود شریف پڑھنا ہے اس کا وہ نہیں ہے. ثواب کے لیے نیت کی تھی، ٹھیک ہے، وہی کافی ہے. کچھ نہ کچھ نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار پڑھتا ہے، بندہ کرتا ہے، مسجد میں آ کر ٹھہرتا ہے. پھر کھانے کا موقع آیا، افطار کا موقع آیا تو افطار کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 10ویں رات ہے. 10 کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10. جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرات
सुनने की नीयतें चंद कर लीजिए हस्ब हाल। अगर आपकी कैफियत ये है बनती है तो कर लें। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग जगह पर तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। आज तो वैसे भी वक्त इंशाअल्लाह कम लगेगा, जल्द फारिग कर देंगे आपको, आप भी आराम करें तो इंशाअल्लाह कल फिर मसरूफियत है। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक यानी एलानात सलात वसलाम वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम और मुसाफा करूं, यानी हाथ मिलाऊंगा और आइंदा भी आते रहने की जो नए इस्लामी भाई होंगे उनको दावत देकर सवाब का हकदार बनूंगा। क्योंकि हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा यहाँ होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर हफ्ते को इशा के बाद आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में, और ये लाइव टेलीकास्ट भी होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम सरदार ज़हीर है, जनरल सेक्रेटरी हूँ मीट वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद का। मेरा ये सवाल है कि चूँकि हमारा प्रोफेशन है ज़बिया करना, तो हमारे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको मुनासिब लोग उजरत नहीं देते हैं, बल्कि उजरत के बदले में वो किसी को कहते हैं ये गोश्त ले जाओ, किसी को कहते हैं ये खाल ले जाओ, ठीक है। तो क्या ये उन लोगों की कुर्बानी जायज़ है? उजरत में कुर्बानी के जानवर की खाल देना या गोश्त देना ये शरअन जायज़ नहीं है, देने वाला गुनाहगार होगा। अलबत्ता कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी ज़बा होते ही अब इसका ये मालिक बन गया जिसने कुर्बानी करवाई, अब इसका गोश्त जो कि तक़र्रुब इल्लल्लाह की मतलब है, तो इसको अपने तौर पर उजरत में ना दे, उजरत में देना ये जायज़ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अहमद अर्ज कर रहा हूँ, कुर्बानी का गोश्त खुद कितना रखें, दूसरों को कितना दें, किसको कम दें, किसको ज़्यादा दें, किसको कुर्बानी का गोश्त देना ज़्यादा अफसल है? कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्तहब है, अफजल है, सवाब का काम है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए, 3 हिस्सों में तकसीम कर ले। अब इसमें बस कुर्बानी तो कुर्बानी है, अब बोलो भेजा मैं रख लूँ तीसरे हिस्से में, सिरी पाए मैं रख लूँ जो मुझे पसंद है, कलेजी मेरी, अच्छी अच्छी बोटियाँ मेरी, बाकी हड्डियाँ तीसरे हिस्से में डालनी, तो अल्लाह ताला देख रहा है कि आप को कुर्बानी कितनी देर है। तो यूँ मतलब है कि समझाने के लिए कर रहा हूँ, पूरा बकरा भी रख लिया तो जायज़ है, लेकिन 3 हिस्से जब करने वे 3 हिस्से हों, प्यारी चीज़ के भी 3 हिस्से हों, भेजा प्यारा है इसके भी 3 हिस्से हों, ये समझ में आता है। तो यूँ 3 हिस्से करके वो जो कर ले तो मदीना मदीना, पूरा बकरा रख ले, पूरी गाय फ्रिज में भर ले तब भी जायज़ है, मालिक है इसका जिसने कुर्बानी की। इसको जो बुरा भला बोले वो खुद बुरा है, जब शरीयत ने बुरा नहीं बोला पूरा जानवर रख लेने को गोश्त, तो मैं और आप कौन होते हैं कि उसको बुरा भला कहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। हूद रज़ा सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या ऊँट की कुर्बानी तीसरे दिन ही करना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है ऊँट की कुर्बानी लोग तीसरे दिन कर रहे होते हैं। ईद के दिन भी कर सकते हैं, जिन्हें जो कुर्बानी के अय्याम है, औकात हैं, सब में ऊँट की कुर्बानी होती है। और ये
ये किसने ये तहकीक की है कि सिर्फ तीसरे दिन ही लोग ऊँट नहर करते हैं? तो मेरी कोई तहकीक नहीं है इसमें, कोई है ऐसी तहकीक कि भाई सभी के सभी 100% तीसरे दिन करते हों? ईद के दिन भी करते होंगे। तीसरे दिन थोड़ी सहूलत होती होगी कि ईद की नमाज के बाद ये नहर करने वाले नहीं मिलते होंगे और इसको देर लगती है, नहर हर एक कर नहीं पाता, इसका माहिर चाहिए, तो ये मिलना मुश्किल, फिर वो ईद की उजरत ज़्यादा होती है, दूसरे दिन के कम, तीसरे दिन इससे कम, तो यूँ भी थोड़ा दिल में थोड़ा वो होता है कि कम खर्चे में काम हो जाए। फिर ये कि उसका गोश्त बनते बटते देर बहुत हो जाएगी, ईद के दिन शाम हो जाएगी, तो यूँ मतलब बांटना बूटना ये भी मुश्किल हो जाएगा। यूँ शायद ये कि तीसरे दिन अक्सरियत करती होगी। अच्छा, हम भी तीसरे दिन, हमारे यहाँ 2 ऊँट खड़े हुए और ये 2 ऊँट इंशाअल्लाह बारगाह रिसालत में नजर होंगे। तो जिन्होंने एक ऊँट दिया हमें, उनकी भी नीयत है कि पूरा ऊँट सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर होगा, उनके नाम पर ज़बा होगा, कुर्बान होगा। एक दूसरा ऊँट मुझे तोहफे में मिला है, तो वो भी मैंने नीयत ज़हन तो यही बनाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पूरा ऊँट नहर कर दिया जाए। तो अब ये कि हम लोग तो तीसरे दिन करते हैं, वो भी दोपहर को 3 बजे से हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई। हमको ये भी तो दुनिया में नेकी की दावत भी तो पहुँचानी है ना, लोग इकट्ठे करने ठीक ठाक। तो इससे मतलब ये कि एक कुर्बानी की अहमियत भी उजागर होती है, एक लोगों को जज्बा मिलता है कुर्बानी का। दूसरा, ऊँट के बहाने जमा करके इनको नेकी की दावत सुनाते हैं, अब समझते हैं और हमने क्या इनसे लेना है, तो आखिरत के सौदे हैं। तो यूँ थोड़ा ऊँट दिखाते हैं तो फिर इसको मसला बताते हैं, फिर ऊँट छुपा देते हैं, तो फिर ऊँट की गर्दन दिखाते हैं, तो फिर कोई सुन्नत बता देते हैं कि ऊँट भी देखे और नेकी की दावत भी सुनता रहे। तो इनको ऊँट दिखा दिखा के आखिरकार फिर नहर करना होता है, वो तो ज़ाहिर है इसके टाइम पर नहर भी करेंगे, लेकिन अब वो पिमरा के अपने कायदे हैं, तो इंटरनेशनल लॉज अपनी जगह पर हैं, तो कहीं एनिमल राइट्स हैं, तो वो तो मसाइल ही मसाइल हैं। दुनिया पे पहुंचना भी तो है ना नेकी का पैगाम, खाली ऊँट का खून दिखाकर दुनिया में अपने चैनल को बंद तो नहीं करवाना ना, तो ये भी एहतियातें करनी होती है। हमारे यहाँ खुद भी गालिबन ये ऐसा मंजर दिखाना मना होता है। हमारे पिमरा पाकिस्तान का जो ये टीवी को जो डील करता है इदारा, तो वो मतलब ऐसा वो नहीं इन्हें दिखाना कानून में मना है कि जिससे लोगों को वहशत, खौफ, घबराहट हो, लेकिन शायद दिखा रहे होते लोग, लेकिन जब पिमरा की वो पकड़ में आते हैं ना तो फिर पता चल जाता है। तो ये कानून है, तो चलो ये भी सही है अपनी जगह पर। फ़वाइद तो होते हैं, इन कवानीन के भी बारहा फ़वाइद होते हैं, तो इनसे तो अपना कोई सारे कोई मुकाबला भी नहीं। अब हमारा वतन, हमारे वतन अजीज़ का जो कानून शरीयत से नहीं टकराता, तो ज़ाहिर है कि उसको फॉलो करने में कोई हर्ज भी नहीं है, और अपना मदनी चैनल भी तो बचाना है ना, उसको बंद नहीं करने देना इंशाअल्लाह करीम। तो अब दुनिया के किसी कानून, अब आप बोलते यार ये लोग डरते हैं, ये नहीं दिखाते, आप बार बार क्या समझे आपको, ये यूँ नहीं करते, यूँ नहीं बोलते, ये खाली लोगों को तनकीद करना बहुत आसान है। अब जैसे अब मैं जोश में आकर किसी ऐसी बात कर दूं जो किसी मुल्क में वो चुभती वो बात वो जोश में आकर कर दूं, और वो मतलब वो भी जोश में आ जाए, अच्छा ठीक है बोलो हमारे खिलाफ, इतने करोड़ डॉलर, इतने करोड़ पाउंड, इतने करोड़ रुपये जुर्माना भरो, फिर आपका चैनल हमारे मुल्क में दाखिल होगा। क्या ख्याल है आपका? वरना उठाओ अपना चैनल बंद कर देंगे वो, कि जब तक पेमेंट नहीं करोगे जुर्माना हम आपको हमारे मुल्क में नहीं, किसी को नहीं देखने देंगे, बंद कर देंगे। होते हैं, आप सब समझ सकते हैं। तो इसलिए हमको सबको देखना होता है कि हम खाली खाली जोश में आकर या बाज़ लोगों के मुतालबे पर के यूँ बोलो, यूँ नहीं बोलते हो, डरते हो। हम भाई डरते हैं, हमारा कांच का महल है, हमें दुनिया भर में लोगों को नमाजी भी तो बनाना है, मुसलमानों को दुश्मनों के 100% हवाले भी तो नहीं करना ना यार। इनको अपने पास भी तो रखना है कि ये आका की सुन्नत हमसे भी सीखते रहें और अपने अकीदे बचाते रहें, अपना ईमान बचाते रहें। तो असल तहरीक तो ईमान बचाओ तहरीक तो मेन है ना अपनी। अब जो भी नाज़रीन समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इसलिए हम लोग जज्बाती
नहीं बनते। हम जहाँ तक इस्लाम ने हमको इजाज़त दी है उस इजाज़त के तहत हम सारी दुनिया में चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, जहाँ इस्लाम हमको मना कर देगा कि भाई यूँ करोगे तो गुनाहगार हो जाओगे तो ठीक है, फिर पीछे हट जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कि पॉलिसी, ये हिकमत अमली मैंने अर्ज़ की, कभी कोई खुदा न खास्ता आपको यूँ बोले भी तो आप उसको समझा सकेंगे यार इनकी ज़ाती तौर पर, जैसे मुझे कोई मार देगा ये मसला नहीं होता, तो दीन का काम रुक जाएगा, दीन के काम में रुकावटें खड़ी होंगी, मसला होगा। मुझे मारने के लिए तो जिन्होंने कोशिशें की हमें तो बुढ़ा हो गया, कोशिशें करने वालों ने की, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ था, आपके साथ अभी तक बैठा हुआ हूँ, और ज़ाहिरी तौर पर इंतज़ाम भी है बचत के, लेकिन मैं समझता हूँ इंतज़ाम सब खोखले हैं दिखाने के। मेरे रब ने बचाया हुआ है, सारी हिफाजत मेरा रब ही कर रहा है। रब जो चाहे वो होगा, सब जो चाहे वो कभी नहीं हो सकता जब तक रब ना चाहे। अपना ये ईमान है ना, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसमें आपने जो इरशाद फरमाया ना, तो तकरीबन जो दुनिया भर में जो लोग रहते हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं, यहाँ भी और कहीं और भी। अपने गैर मुल्की लोग बहुत समझते हैं इन बातों को। अपने तौर पर हर कोई हिफाजती इक़दामात यार अपने लिए करता है। मैं एक जानने वाले थे हुज़ूर, इनका वो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ था, सारे घर वाले, फैमिली, ये वो, तो इनकी अपनी कुछ फैमिली मेंबर, बच्चे बच्चियाँ ओवरसीज़ थे, बैरून मुल्क थे। तो मुझे खुद उन्होंने कहा कि यार वो ग्रुप बना हुआ है, और ग्रुप बना हुआ तो कभी कौन सी वीडियो डाल देते हैं, कभी कौन सी बात डाल देते हैं, कभी क्या डाल देते हैं, कभी कौन सी पोस्ट दे देते हैं। यार मेरे को मेरी बच्चियों के पास, मेरे बच्चों के पास, फ़लाँ के पास जाना होता है, फ़लाँ मुल्क में जाना होता है, अब यार मैं इस तरह कैसे जा सकूँगा। तो मैंने तो यार अपने उस ग्रुप से मैंने माजरत के लिए मैं तो निकल गया उस ग्रुप से। यार खाली अपने दुनिया में ना जा सके क्या फ़ायदा अपने बच्चों का। यानी एक फैमिली मेम्बर को पता चल गया कि अगर मुझे दुनिया में कहीं जाना है तो मुझे क्या क्या बचत करनी है, अपना कारोबार करना है क्या बचत। जितने भी ये मुल्क से बाहर जो बिज़नेस करते हैं या आउट जिनका ये तरह का बिज़नेस होता है, उनको भी सारी एहतियातें और सारी चीज़ें समझ आती हैं। तो अच्छा, फिर वो तो जो भी करते हैं अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जो भी पर्सनल इनका। यहाँ दावत इस्लामी का मामला तो जिस चीज़ के लिए हो, तो आप सुन ही रहे, ईमान बचाओ तहरीक का है, और डरना या ना डरना ये भी किसके लिए है, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के काम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें अब तो मैं क्या समझता हूँ कि जिसको समझ में नहीं आती तो कोई समझ में आ गई हैं। एक बार कुरानी आयत की रोशनी में मैंने कुछ बयान किया था, एक मुफ्ती साहब का पैगाम आया था, आपको याद हो तो, चंद साल पहले, कि यार ये बातें बताना ज़रूरी है। बेशक कुरानी आयत है कि हम भी मानते हैं ये अहकाम, अब ऐसा मुल्क जहाँ उस पर अमल नामुमकिन है, बल्कि ख़तरा है कि वो कोई हंगामे हो जाए, रुकावटें पड़ जाएं, तो ये क्या आप पर लाजिम है, कंपल्सरी कि ये बातें हम तक पहुँचाएं। अब मैं कुछ भी इशारा नहीं दूंगा। तो दूसरे मुल्कों वाले बेचारे वो आजमाइश पा जाते हैं, जब आप कोई सी बात कर देते हैं ना, अब उसका क्या करें। उस मुल्क को बोलेंगे मारे खाओ तुम, भले मस्जिदें तुम्हारी जला दें, नो प्रॉब्लम, हम शहर बबर, हम किसी के बाप से नहीं डरते। मस्जिदों में हमले, फिर हमारे जामियातुल मदीना दुनिया के कई ममालिक में खुले हुए, मस्जिदों पर दुनिया भर में बाज़ औक़ात कई ममालिक में हम लोग के वाक़यात तो है, बाद ममालिक में गैर मुस्लिमों की तरफ जो मीडिया से वाक़ई इनको पता होता है कि मस्जिदों में हमले, तो हमेशा कोई जज्बाती कुछ कर दें और ये मस्जिदें माअज़ल्लाह तोड़ फोड़ दें। मुसलमान इतने से कमज़ोर, वो बेचारे मस्जिद बचाए, तो हम क्या ज़रूरी है कि हर बात इसके ज़रिए ही बताएं। मैं हर बात आपको चैनल के ज़रिए, तो कोई बात हम मिल बैठ कर तो एक दूसरे को बता सकते हैं ना, ज़रूरी है चैनल पर बताएं। तो यूँ मतलब ये नहीं कि बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं कि मुश्किल हो जाती है। खुदा आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फ़तह रज़विया शरीफ में फरमाया कि जो नए नए मुसलमान होते हैं, इनको कोई सवाल था इसमें कि ये गहरी गहरी बातें उनको नहीं बताई जाती, बातें दुरुस्त है लेकिन इनको नहीं बताई जाती है, कहीं वापस नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम से फिर ना जाए। हो इस्लाम में इतनी मुश्किल बातें हैं, तो पहले इनको नमाज़ें तो सिखाओ, इनको वज़ू करना तो सिखाओ, गुस्ल करना तो सिखाओ, आहिस्ता आहिस्ता। मतलब जैसे केजी नर्सरी वाले को हम मतलब BA और MBA का सबक देना शुरू कर दें तो उसके पल्ले क्या बढ़ेगा। तो अब चैनल पर बैठे हुए हर तरह के लोग होते हैं, जो बेचारे बिल्कुल कोरे कोरे भी होते हैं, अहले इल्म भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो हर बात इसमें बताना
ये ज़ाहिर है कि मुश्किल होता है। अरे यहाँ तक कि हुजूर कई ऐसे फ़िक़ही अहकाम है जो आप बयान फरमाते हैं जिनमें आपके पेश नज़र ये होता है कि यार बच्चियाँ, फैमिली और ये सारे बैठे हुए होंगे तो यार इन लफ्ज़ों को ना बयान किया जाए, ये टॉपिक ना बयान किया जाए, क्योंकि ये जो घर बैठे हुए जो नाज़रीन होते हैं इसमें सब बच्चे, बच्चियाँ, फैमिली, सारी माँ बहन सब बैठे हुए होते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक लेने, कौन से टॉपिक नहीं लेने, ये उनके लिए भी गौर किया जाता है। हुजूर कहीं मैं हाज़िर था, कोई मौजू चला होगा इसी तरह का, तो किसी ने कहा यार एक ये मैं यूँ समझे कि खुलासतन समझाने के लिए अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ, यार ये मेरी समझ में नहीं आता यार। तो उनसे मैंने कहा कि हम क्या करें ये बताइए, हम आपकी समझ के पीछे चलें या शरीयत के पीछे चलें, आप क्या फरमाते हैं? लाखों लोग हैं दावत इस्लामी में, सबकी समझ जुदा जुदा, अब सबकी समझ को फॉलो करेंगे तो हम कहाँ पहुँचें? तो हम सबको अल्लाह पाक ने जो शरीयत अता की, हम शरीयत के पीछे चलें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती और दावत इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं करती तो आप अपनी समझ को समझा दें, ना कि हमको समझा दें। हमें वो बात समझा दें कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ ना कर रहे, अगर कर रहे तो हम समझा दें, तो हम तो शरीयत के पीछे चलेंगे। सबकी समझ के पीछे चलेंगे तो फिर हमारी समझ की तरफ चली जाएगी। तो हम शरीयत के पीछे चलना चाहते हैं, क्या फरमाते हैं आप? और उसके बाद बेचारा क्या जवाब देगा? मेरे आका हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, हर जगह के लिए एक मुनासिब गुफ्तगू है और हर गुफ्तगू के लायक कुछ ख़ास मर्द हैं और हर मर्द के लिए कुछ कहने की गुंजाइश है और हर गुंजाइश के लिए एक अंजाम है। लिहाजा हम अल्लाह ताला से अच्छा अंजाम चाहते हैं क्योंकि उसी के पास हर हाल का हकीकी इल्म है। कल्लिमिन नास अला क़दर उक़ूलिहिम, ये तो किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है। तो यानी कल्लिमिन नास अला क़दर उक़ूलिहिम, यानी लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम कर, गुफ्तगू कर। हम सबको अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए। कभी कोई इवेंट आता है, कभी कोई अड़ाउड़ी मुल्क में होती है तो हमको घसीटते हैं कि आप भी आए। अरे यार मस्जिदें कि हम शहीद करवाएं यार दुनिया में, यार हमें माफ रखे। हम दुनिया भर में, आप एक मुल्क में, एक मुल्क के किसी हिस्से में, अंडरस्टूड है। वो दुनिया भर में काम करने निकले या जो दुनिया भर में घूमता है उसको पता होता है कि कितने 200 होते हैं। अल्लाह हमारी मस्जिदें दुनिया में जो है को आबाद रखे, किसी तरह का शर ना पहुँचे। इस तरह जामियातुल मदीना, इस तरह दावत इस्लामी का दीनी काम, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के अक्सरियती मुल्कों में बाज़ जगह हमें जेलों में काम करने की इजाज़त है। गैर मुस्लिमों को मुसलमान करके आ जाते हैं मुबल्लिग, कोई नहीं बोलता क्योंकि हम लोग भी अड़ाउड़ी नहीं करते। पथराव, घेराव, हड़तालें, ये वो, इंशाअल्लाह मेरे जीते जी भी नहीं होगा और मेरी शूरा भी नहीं करेगी इंशाअल्लाह, आप भी नहीं करेंगे। ये हमारा काम नहीं है। लोगों की दुकानें तोड़ना है, कारोबार बंद करवाना, और मतलब ये 2 घड़ी का जोशीला काम होता है। फिर जो भुगतते हैं भुगतते हैं, इसको उठाती है पुलिस, उसको उठाती, तब तो वीडियो बनाती, कुछ भी नहीं बोलती, मारो तोड़ो तुम्हारा तुझे बनाती हुई घरों से उठाती है। ये छुड़ाने वाला कौन होता है? ये शायद जो समझदार है उनको पता होगा। फिर जो हालत होते हैं ना, जो ख़ानदान बंधन होता है ना, कोई पूछने वाला बाज़ नहीं होता। फिर खुद घर के कागजात जमा कराओ, अपनी कार के कागजात जमा कराओ, या इतना गोल्ड जमा करवाओ, ये गिरवी रखाओ, और फिर ची बोल जाते हैं। ये भी होता है। तो अपना ये तो एक दुनियावी नुकसान बता रहा हूँ। और फिर जो मतलब बस, तो अल्लाह करीम हमें मस्जिद भरो तहरीक के साथ ही शामिल रखे, वाबस्ता रखे। जेल भरो तहरीक हमने नहीं चलानी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। प्यारे मुर्शद करीम, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और हिमान में रखे, हाथों के हसद और सिरों के सर से महफूज फरमाए और दावत इस्लामी को खूब तरक्कियाँ और कामयाबियाँ फरमाए। यकीनन बुजुर्गों का मदनी चैनल हम बूढ़ों के लिए राहत का सामान होगा। मैं बुजुर्ग कम्युनिटी के नुमाइंदे के तौर पर आपको और तमाम दावत इस्लामी वालों को तरक्की की जानिब बढ़ने वाले एक और कदम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया दावत इस्लामी। अब मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, अगर कोई शख्स कुर्बानी की खाल किसी दीनी तहरीक या मदरसे में ना दे और अपने ही पास रख कर इस्तेमाल कर ले, तो उस शख्स का खाल को अपने पास रख कर इस्तेमाल करना क्या दुरुस्त है?
اور میری طرح کے بوڑھے افراد قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں اپنا حصہ کیسے ملا سکتے ہیں، رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم سبحان اللہ۔ اصل یہ میرے برادری آتی ہے مجھے بھی خوش ہوتا ہے، میں بوڑھوں کو اپنی برادری سمجھتا ہوں، میں بوڑھا یہ بزرگ۔ اللہ اللہ، یہ دیکھو میری برادری میں بھی شامل ہو گئے۔ اللہ کریم ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، خوشی ہوتی ہے، یا پہلی محرم آنے دو بس، بزرگوں کی عید کا دن ہوگا وہ اس معاملے میں کیا ان کا مدنی چینل جو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو قربانی کی کھالیں، دیکھو یہ بزرگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، سوال سے پہلے آپ نے نوٹ کیا، جتنے ان کے سوال چلتے ہیں نا یہ دعائیں دیتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو انہوں نے مطلب یہ کہ قربانی کی کھال کا سوال، قربانی کھال کے تعلق سے سوال کیا، تو میں جس کھال پہ اس وقت بیٹھا ہوں یہ قربانی کی کھال ہے۔ اب وہ کس کی ہے یہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، میری اپنی یا مدنی چینل والوں نے کہیں قربانی کھال حاصل کی ہے یہ بھول گیا ہوں میں۔ بہرحال ہے قربانی کی کھال، اتنی خوبصورت کھال ہے، گوشت فروش کہاں بیچیں گے گوشت، سر تو بہت مہنگا جانور ہوتا ہے۔ بکری کی کھال پر، بکری میں تو بکری ہے، بھیڑ، دمبا وغیرہ، تو ان کی کھال پر بیٹھنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر آتا ہے، تو وہ ان کے بھی اثرات ہیں، کھال کے اثرات ہیں۔ تو حرام جانوروں کے گوشت کے اثرات کتنے خطرناک ہوتے ہوں گے، تو حلال جانور، تو بکری حلال جانور ہے، یہ کھاؤ اور اپنی صحت عبادت کے لیے مضبوط بناؤ۔ تو قربانی کھال اپنی ذات کے استعمال کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال یہ کہ بیچ کر اس کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے ہاں، اگر اس کو بیچ دی اور اب یہ پیسے جو آ گئے تو یہ اس کو دینے پڑیں گے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اب یہ صدقہ کرنے ہوں گے، اور باقی رکھ کر اس کو چاہے مصلی بنائے، چاہے بیٹھنے کے لیے اس کو ترکیب بنائیں، یا اپنی کتاب میں اس کو، اس کی کتاب میں جلد بائنڈنگ میں استعمال کریں، یا مشق بنائیں، مشکیزہ بنائیں، اپنے ذاتی استعمال میں قربانی کھال استعمال کی جا سکتی ہے، کسی مالدار کو بھی دی جا سکتی ہے کھال، جیسے گوشت کا حکم ہے وہی کھال کا حکم، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کھال کی ٹوپیاں بھی بنتی ہیں، پہنتے بھی ہیں لوگ۔ ہم اس میدان عرفات میں ہیں اور ان مبارک گھڑیوں میں بزرگوں کے مدنی چینل کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب کریم جو بزرگوں کے مدنی چینل کے لیے ساتھ دے، اس کو عام کرے، اس میں جو بھی خدمت کرے مولا سب کو حاجی بنا دے، سب کو مدینے کا زائر بنا دے، سب کو میدان عرفات میں پہنچا دے۔ یا اللہ جو بزرگ اس میں نعت پڑھیں، تلاوت کریں اور بیان کریں، اللہ سب کو برکتیں عطا فرما۔ آمین آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینا شریف سے، عرفات شریف سے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 2 یا 3 دن پہلے وہ قربانی کے شرائط پائے جائیں کہنے کے بجائے حج کے شرائط پائے جائیں یہ کہہ دیا ہے۔ سننے والا سمجھ جائے گا پورا، وہ سن کر شاید کہ سبقت لسانی، سبقت لسانی ہو گئی۔ سبقت لسانی اس کو بولتے ہیں کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا۔ اب یہ کس دن ہوا تھا یہ یاد نہیں آ رہا، پرسوں نا، ہاں شاید پرسوں یا ترسوں۔ تو یہ مدنی چینل والے سائیں بھائی اس کو ڈھونڈ کر اس کی ترکیب کر لیں۔ اب دیکھو کسی کی توجہ نہیں تھی، کسی نے بہرحال پیغام دیا مجھے، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ وضاحت کی کیوں نہیں، یہ بھی بھول گیا تھا، کیا وضاحت کرنی ہے بھی بھول گیا تھا، تو اس لیے ابھی وہ روک کر میں نے سنا کہ اب اس کے بعد موقع ملنا مشکل ہے، آج آخری رات ہے۔
کعبہ شریف کی خصوصیات۔ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ کعبہ شریف کا حج فرض کیا گیا۔ حج ہمیشہ صرف کعبے کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی اس کا حج نہ ہوا۔ کعبہ شریف کو امن کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ کعبہ شریف میں بہت سی نشانیاں رکھی گئیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر پرواز نہیں کرتے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماؤ ترو تازہ قربانیاں کرو کہ وہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معافی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں اور دل نواز صدائیں، صدقہ اور مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے، اور سب کو اپنے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان اللہ۔ شاید یہ اس میں سے رہ گئے تھے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بڑا پیارا پڑھ رہے تھے، منظر بھی کعبے کے دروازے کا تھا، ماشاءاللہ۔ یہ دعائیں اللہ کرے ان کے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ آج کی رات کی بھی ایک اہمیت ہے، اگر اس تعلق سے بھی کچھ بیان ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفے کی رات، شب عرفہ، اذان فجر تک۔ حوالہ در منصور سورۃ الدخان جلد 7 پیج نمبر 402۔ آج کی رات بھی عبادت کی رات ہے، جو 2 راتیں بیان ہوئی ہیں حدیث پاک میں۔ ایک تو لیلۃ الجائزہ، جو رمضان شریف کے بعد چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، وہ اور آج والی رات یعنی بقر عید کی رات، شب لیلۃ الاضحیٰ قربانی کی رات، تو یہ بھی بڑی اہم رات ہے۔ اور ان راتوں کو جو اللہ کی عبادت میں گزارے، قیام کرے، تو اس دن ان کے دل نہیں مریں گے جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، حدیث پاک میں۔ تو آج کی رات
मसलन किसी ने इशा की फ़र्ज़ बाजमात अदा की है, फजर भी बाजमात अदा की है, तो यूँ भी ये पूरी रात उसकी इबादत में गुजरने की सूरत है। तो आज ख़ास तहज्जुद का भी एहतमाम करना चाहिए। जो पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह उनको इस्तिकामत दे, जो नहीं पढ़ते वो आज की रात की थोड़ी हिर्स करें क्या। और अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में बस हम फारिग हो जाएंगे, तो कुछ आराम कर लें और तहज्जुद के लिए उठें। फजर हमारे यहाँ आलमी मदीना मरकज़ में 5:15 बजे फ़िज़ान मदीना में, और ईद की नमाज 6:15। आज है दिन की मसरूफियात, तो जवानों को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए दुआ करें, मैं हिम्मत दे रहा हूँ। 10 दिन की थकन जमा हो रही है ना, तो फिर भी अब जो जब तक दम है इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह फारिग होकर मैं भी कुछ हो सका तो आराम की कोशिश करूँगा, और फिर इंशाअल्लाह मदीना इंशाअल्लाह अल करीम। ये भी आज की रात का एक वजीफा भी कुछ है, ईद का वजीफा। जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े और फौतशुदा मुसलमानों की रूहों को इसका ईसाल सवाब करे, तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार यानी नूर दाखिल होते हैं। और जब वो पढ़ने वाला खुद मरेगा, अल्लाह पाक उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। तो कल ईद के दिन ये विर्द भी करना है इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जन्नत का मेंढा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया, तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लिए तशरीफ लाए, और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह आवाज मुबारक सुनी तो अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया और जान गए कि अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदिये में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के मुबारक कलेमात यानी अल्फाज की अदायगी ये सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी और सारी हो गई। बिनाया शरह हिदाया जिल्द 3 सफ़ा 387। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1445 हिजरी के ज़ुल्हज शरीफ की 10वीं रात यानी ईद की रात है, और हमने हज़रात इब्राहिम व इस्माइल व हाजिरा अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि अलैहा के इसाले सवाब के लिए खाने की तरकीब की है। आपने भी ना की हो तो कर लीजिए। माहौल को साफ सुथरा रखने में लोग अहम किरदार अदा करते हैं, ताहम जानवरों की आलाइशों से उठने वाला ताफुन और गंदगी के ढेर मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का भी बायस बनते हैं। सफाई सुथराई इंतजामी इदारों का ही काम नहीं बल्कि अफराद की इनफरादी जिम्मेदारी भी बनती है। लोग लाखों रुपए का जानवर खरीद लेते हैं, हजारों रुपए उसकी कुर्बानी के लिए अदा कर देते हैं, मगर जानवरों की आलाइशें सड़कों पर ही छोड़ देते हैं। अमीर अहले सुन्नत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ही मुनासिब हो कि लोग कुर्बानी के पैसों में सफाई का बजट भी शामिल कर लें। ऐसे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली तो इसके पैसे लगते नहीं है। इंतज़ामिया के जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट से तनख्वाह पाते हैं और वो साफ़ सुथरा करना ये इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन रिश्वत का दौर है। तो अब ये कि मैं ये तो कहने से रहा कि इनको बुलाओ रिश्वतें देकर, अरे वो तो ले रहे होते हैं पैसे ईदी के नाम पर या जो भी। और उम्मन ये मुसलमान भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो आमतौर पर ये काम मुसलमान नहीं कर रहे होते, गैर मुस्लिम होते हैं। इनको ईद और ईदी से वैसे कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन पैसा चाहिए इस तरह भी। तो बहरहाल ये कि
अपने वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं ना, पता नहीं अब काउंसलर सिस्टम है कि नहीं है, काउंसलर वगैरह ये करवा देते हैं उसे। कुछ मालूमात लेने की कोशिश की थी हुजूर, पहले भी ली थी, अब भी ली है, कि पिछले कई सालों पुरानी बात अगर हम करते हैं तो उसमें और पिछले चंद सालों में सफाई के ताल्लुक से, मैं नहीं कहता कि पूरे शहर का ये आलम होगा, लेकिन कई ऐसे इलाकों की जो मालूमात मैंने ली थी, पहले भी ली थी, तो कह सकते हैं कि सफाई और ये आलाइशें उठाने का जो निज़ाम है ये पहले के मुकाबले में बेहतर है। क्योंकि ये मुझे लगता है ये भी अगर हम कर लें, जैसे नहीं होता तो हम कहते हैं नहीं हो रहा, जब हो रहा है तो अगर हम इनको थोड़ा सा इस पर, क्योंकि हौसला अफजाई होती है तो बातों का चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। जी। तो मैं हर इलाके का नहीं कहता, लेकिन बाज़ इलाकों के बारे में रिपोर्ट भी है, तो मालूमात मैंने ली, तो अब पहले के मुकाबले में आलाइशें उठाने का जो निज़ाम है, सफाई का निज़ाम है, फिर पाउडर वगैरह छिड़कने का जो निज़ाम है, ये पहले तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, चंद सालों पुरानी बात कर, लेकिन पिछले चंद एक सालों से देखा गया है कि उसमें बेहतरी आ रही है। हम अपने अतराफ़ की बात कर सकते हैं, मुल्क भर है और फिर दुनिया भर का तो ऐसा का निज़ाम नहीं होता, लेकिन बाद बड़े शहरों में देखा जाए तो अब वहाँ का क्या हालत में पता नहीं है। तो जहाँ हो रहा है बेहतर तो उनको और बेहतर कर लेना चाहिए, जो नहीं हो रहा तो अगर वो इलाके के लोग जो यूसी सिस्टम है ना, अपने यहाँ यूनियन काउंसिल सिस्टम है, टाउन सिस्टम है ना, टाउन और यूनियन काउंसिल सिस्टम है, तो अगर उनसे राब्ते हो जाए तो ये हो सकता है कि ये जल्दी ये चीज़ें हो जाए। इलाके के भी लोग बातों का बाअसर होते हैं, मिला जुला कर लेते हैं। और जैसे पिछले मदनी मुज़ाकरों में अमीर सुन्नत ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि कोशिश की जाए कि अपने जो जानवर को अगर आपने गिराना है तो कोशिश करें कि इसको कदरे सड़क के एक तरफ करके गिराएं, ताकि इसकी आलाइशें वगैरह वो एक तरफ रहें, वरना घसीटना तो इतना आसान नहीं होता उसको, फिर आलाइशों को, तो फिर और गंदगी का अंदेशा होता है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ पर हम अवाम अपना किरदार अदा करें, इदारे जहाँ कमज़ोर हैं वो अपना किरदार अदा करें। क्या फरमाते हो? हाँ, ज़ाहिर है कि वो मैंने देखे हैं बाज़ वक़्त जब कहीं हम जा रहे होते हैं तो लीडर जो होते हैं ना, जी हाँ, ये ऊपर रहकर सफाइयाँ करवा रहे होते हैं। कभी कभी शायद मुलाकात भी इनसे करना याद पड़ता है, जैसे पहचानते हो तो मुलाकात की है, इस तरह इशारे किए है, तो कर रहे होते हैं। तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, जो नेक नियति के साथ करना चाहिए। सफाई तो ये सुन्नत है, और ये हम तो अपने पूरा वतन हमारा अल्लाह करे साफ सुथरा ही रहे, लेकिन बाद अल्लाह के कमज़ोर होते ही भी हकीकत है, वहाँ ओजड़ियों के ढेर और ये नज़र आते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे तो हैदराबाद से भी पैगाम आ गया कि हैदराबाद में भी पहले के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हैं। तो हो सकता है जहाँ बेहतर हो वहाँ, जहाँ लोग इस तरह के काम के एक्टिव मिल जाते हैं तो वहाँ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, जहाँ एक्टिव नहीं होते हैं वहाँ भी लोग बेचारे परेशान घूम रहे होते हैं। तो सबको मिलकर जैसे आवाम को भी साथ देना चाहिए कि जानवर रोड पे नहीं करना चाहिए, बल्कि साइड पर या अपनी कोई ज़ाती, बाज़ और अपनी ज़ाती जगह भी बड़ी बड़ी होती है तो उनके अंदर ही मतलब निपटा ले उसको। रोड पर क्या मतलब यानी जमा करना था उधर ही कर ले, ताकि वो कम से कम खराबियाँ पैदा हों, सफाई के मसाइल खड़े हों। या करीबी कचरा कुंडी है तो खुद उठा कर या उठवा कर अपने वहाँ डलवा दें। ये क्या ज़रूरी है कि मक्खियाँ भिन भिन आती रहें और वो आएगा उठाएगा और मतलब जरासीम आपके घर में हमलावर हो जाए बीमारियों के, तो आपकी भी तो इसमें आपका अपना भी तो फ़ायदा है। बिल्कुल, बदबू आएगी, बदबू से दिमाग ख़राब होगा। और ख़ासकर जो एयरपोर्ट के अतराफ में जो इलाके होते हैं ना, ये बड़े मैंने को हुस्सास होते हैं। आपने नोट किया होगा वहाँ इमारतें भी बुलंद नहीं होने देते, वहाँ ऊपर एंटीना भी नहीं लगाने देते जो इनकी रेंज होती है, इसके भी बहुत नीचे ये रखेंगे कि कहीं हवाई जहाज़ को नुकसान ना हो। तो वहाँ अगर अतराफ में बाक़ियात यही ओजड़ियाँ आते वगैरह होंगी तो परिंदे उसमें झपटते रहेंगे, खाली जगह पे आप फेंक आएंगे। तो ये परिंदे भी बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं कि हवाई जहाज़ों से टकरा जाते हैं और हवाई जहाज़ को इससे नुकसान होता है। तो इसलिए ऐसी जगहों पर, हुस्सास जगहों पर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। और हर जगह एहतियात तो करनी है कि बदबू गंदगी, ये मतलब ज़ाहिर है कि सुन्नत यही है कि सफाई, अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, सफाई पाकीज़गी ये ईमान से है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक पिक्चर आई है हुजूर हमारे पास,
یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے خریدا تھا تو یہ جڑ سے سینگ نکلا ہوا تھا، منڈی میں ٹھیک نظر آ رہا تھا، اور صبح کھال کچھ ادھر ادھر ہو گئی تو نیچے سے یہ زخم نکلا ہے. تو اب ان کا کہنا تھا کہ اب کیا کریں؟ ہے تو زخم ہوئی. اصل میں وہ اتنا نازک دور ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ سینگ بعض اوقات نکل آتا ہے، تو زخم اب لوگوں کو بوسوں کو پتہ ہوتا ہے کہ زخم والا نہیں لینا، تو یہ بعض اوقات مٹی اور اس طرح کی چیزیں لیپ کر اس زخم کو بند کر دیتے ہیں. پھر جب گھر پہ آ کے بعض اوقات کوئی ٹکر وکر سے لگتی ہے یا نہلاتے دھلاتے ہیں تو وہ زخم کھل جاتا ہے. ہاں تو اب یہ کہ اور کہیں زخم ہوتا پیٹھ پر وغیرہ تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، قربانی ہو جاتی. مگر مسئلہ تو ہے وہاں مکروہ تنزیہ، یعنی ناپسندیدہ ہے کہ معمولی عیب ہو. لیکن یہ کہ یہ جو اگر سینگ جڑ سے نکل گیا ہے اور ابھی تک زخم اس کا ہرا ہے، بھرا نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی ہوگی نہیں. اور یہ جو سر دکھایا جا رہا ہے جانور کا، تو وہ بھی زخم اس کا بھی بھرا نہیں ہے. تو ان مانو کر اس جانور کی اگر یہ بقرعید تک یہ زخم بھرتا نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی اس کی. پر ٹھگنے والے، دھوکہ دینے والے، اللہ کریم ان کو ہدایت دے. حدیث پاک میں کہ جو دھوکہ دے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی ابتداء، بعد میں سزا پوری ہو لینے کے بعد وہ جنت، مسلمان ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو جنت میں ضرور جائے گا. لیکن یہ سوچنا کہ چلو بعد میں ضرور جائیں گے جنت میں، تو جائیں گے نا، تھوڑا عذاب سہ لیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. پھر تو ایمان سے چلا گیا نا، اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا. نو پرابلم. ابھی خالی پکڑ لینا، چینٹی بھرے والے چین بچے بولتے تھے، چین تو واقعی چین نکل جاتی تھی کہ چینٹی برداشت نہیں کر سکتا. تو آگ کے ہتھوڑے اور سانپ اور بچھو کے حملے اور آگ میں جلنا، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی سر پہ بہایا جانا، پھر اس کو پینا، آتے کٹ کٹ کے باہر نکلنا، پتہ نہیں کیا کیا خطرناک عذاب ہے. اب کون سا عذاب کس کو ہوگا وہ الگ صورت ہے، لیکن یہ کہ عذابات بہت خطرناک ہے. خدا کی قسم ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی ہم اللہ کا عذاب برداشت کر ہی نہیں سکتے. اللہ پاک ہم کو بس بے حساب بخش دے. تو یہ بے باکی ہے، خوفناک بے باکی ہے کہ بعد میں جنت میں تو جائیں گے نا یار، دیکھی جائیں گی. تو نعوذ باللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. کبھی کہہ لیا ہے اور اللہ کے عذاب کو ہلکا پانا کسی بات سے پایا گیا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، تو پھر یہ کہ اس کی سچی توبہ کرے، کیونکہ اس طرح کہنے سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، ختم. اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے کا ایمان نکل گیا. پچھلی ساری عبادتیں بیکار ہو گئی. حج کیا تھا وہ بھی گیا، اور بیوی تھی اس کو نکاح بھی ٹوٹا، خلاص. تو اب توبہ کرے نئے سرے سے، اسی کفر سے کلمہ پڑھے، اور حج واپس فرض ہوگا جب اس میں وہ استطاعت آئے گی، اس کی حیثیت پیدا ہوگی، جو بھی شرائط پورے ہوں گے. اس طرح نکاح بھی دوبارہ کرنا ہوگا اس کو. کرنا چاہے، ورنہ بیوی تو نکل گئی اس کے نکاح سے. تو بڑا نازک معاملہ ہے. اس میں مطلب یہ کہ شیطان کے وسوسوں کو پالنا نہیں چاہیے. جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، ایمان بچانے کے لیے بہترین کتاب ہے. اس کو ضرور آپ حاصل کریں، یا تو خریدیں، اس کو پرچیز کر لیں مکتبۃ المدینہ سے، یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. پڑھیں ضرور، بہت بہت کام کی کتاب ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 بار پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
सुब्हान अल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हान अल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हान अल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती है, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाती है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक के मेरे पास मौजूद नेकियों पर और जो मुझे अपनी नेकियां ईसाल करें इन सब पर अपने करम के शायान शान अजर सवाब अता फरमा। ये सारा सवाब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा और वसीला खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सारा सवाब तमाम अंबिया मुरसलीन खुलफा राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन तमाम सहाबा व ताबिईन तबे ताबिईन अइम्मा मुज्तहिदीन उलमा कामिलीन मशाइख आमिलीन तमाम बुजुर्गान दीन कुल मुमिनात मुमिनीन कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन खुसूसन हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सैयदतुना और हज़रत बीबी हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा, वालिदैन मुस्तफ़ा शहीदान व असीरान करबला हसन करीमैन, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल अफ़ाज़िल मुफ्ती अहमद यार खान मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक हाजी मुश्ताक हाजी ज़मज़म रज़ा तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन। और जो 3 दिन कुर्बानी की खालों के लिए इस तरह निकलेंगे अपने घरों से कि जो बाकी वक्त 3 दिन मदनी काफिले के जदवल के मुताबिक गुजारेंगे, इनको भी सवाब
अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे गुनाह मुआफ फरमा। ए अल्लाह हमारी बेहिसाब मगफिरत हो जाए। या अल्लाह पाक हमें नेक बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे। आज लैलतुल दुहा कुर्बानी की रात है। ए अल्लाह पाक हमें तेरे दीन की खातिर हर तरह की कुर्बानी पेश करने का जज्बा अता कर दे, बुखल से नजात दे, सखावत नसीब कर दे। या अल्लाह पाक जज्बा ईसार अता फरमा। अल्लाह पाक दूसरों के माल पर नजर रखने के बजाय हमें कनाअत नसीब हो जाए। जितना दिया उस पर हमारा दिल जमा रहे। या अल्लाह पाक तूने जो हमारे लिए मुकद्दर किया, जो तकदीर बनाई, जो लिखा, सब पर हमको बस इसी को हम काफ़ी समझे। हसद से निकल आए, किसी की नेमत देखकर हमें जलन ना हो बल्कि हमें खुशी हो। ऐ अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमा, सबके सदके हम पर भी अपनी रहमतें उतार दे। ऐ अल्लाह पाक जितने हाजी हज से मुशर्रफ हुए सबके हज कबूल हो जाए। या अल्लाह पाक सबकी मिना मुज़दलिफ़ा की और मैदान अरफात की हाज़िरियाँ मकबूल हो। या अल्लाह पाक बहुत से हाजी तो अब तवाफ़ ज़ियारा भी कर चुके होंगे, ये भी कबूल हो जाए। जो नहीं कर पाए इनको भी सआदत मिल जाए, कर लें, कबूल भी हो जाए। कुर्बानियाँ भी लाखों करोड़ों हो गई होंगी, सब कबूल हो जाए इनकी। ऐ अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र कर दे और आइंदा साल हमें भी हज नसीब हो जाए, हम भी मीठे मदीने की हाज़िरी से मुशर्रफ हो जाएं। या अल्लाह पाक तेरी राह में जो कुर्बानियाँ पेश होनी है, जिन्होंने कर ली, जो करेंगे, सब कबूल हो जाए। दिल बड़ा हो, खुश दिली के साथ कुर्बानियाँ करना नसीब हो जाए। गोश्त की हवस, गोश्त के उम्दा हिस्सों की हवस हमारे दिल से निकले और सब राय खुदा में लुटाने का जज्बा मिल जाए, जज्बा अता कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमारा जज्बा बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। ऐ अल्लाह पाक हमें सखावत का जज्बा दे, इसार और कुर्बानी का जज्बा दे। या अल्लाह पाक ये भी जज्बा अता कर दे कि जो हम अपने लिए पसंद करें वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें, उसको नुकसान पहुँचे इसमें हमें खुशी ना हो बल्कि हमें रंज हो। अपने मुसलमान का भला सोचें, मुसलमान भाई का फ़ायदा सोचें। अपने मुसलमान भाई को ज़रूरत हो तो हम उसका ताउन करें, उसकी मदद करें। गरीबों से हमदर्दियाँ नसीब हों, सादात किराम की खिदमत नसीब हो, उलमाए किराम की खिदमत नसीब हो। ऐ अल्लाह पाक हमें ऐसा बंदा बना दे जैसा बंदा तुझे पसंद आता है। या अल्लाह पाक हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं, परेशान हाल खुशहाल हों। ऐ अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो। बेटों के जिन्हें बेटे चाहिए उन्हें बेटे, जिन्हें बेटियां चाहिए उन्हें बेटियां नसीब हों। ऐ अल्लाह पाक सब मामलात में आफियत हो। जिनकी औलाद नाफरमान है वो फरमाबरदार हो जाए, सब की औलादें आँखों की ठंडक बने, माँ बाप की फरमाबरदार बने, सब शरीयत व सुन्नत के मुताबिक या अल्लाह पाक तेरी रज़ा के साए में रहते हुए जिंदगियां गुजारें। मजलूम कैदी रिहा हो जाए, मकरूज़ों के कर्जे उतरे, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिल जाए। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या खुदा ऐसे असबाब पाऊं, या खुदा ऐसे असबाब पाऊं, काश मुझको अरमान हज का बड़ा है।
جاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے بیابان عرب تیری بغاروں کو سلام. اے بیابان عرب تیری بغاروں کو سلام. والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما.
सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। इस दर से मिल रहे हैं दुनिया और दीन दोनों, इस दर से मिल रहे हैं दुनिया और दीन दोनों, इस दर से मिल रहे हैं दुनिया और दीन दोनों। ये हमने आजमाया मदनी मुज़ाकरे में, ये हमने आजमाया मदनी मुज़ाकरे में। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे